یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی قربانیوں میں گزار دی۔ کبھی شوہر کی بات حرف آخر سمجھی، کبھی نیکی کے چکر میں اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اور کبھی صرف محبت کے ایک اشارے پر پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا۔ لیکن اس رات ان کے نصیب نے ایک ایسا موڑ لیا کہ قسمت کی دراڑوں سے چھپے سب سچ باہر آ گئے۔ پولیس نے انہیں چور سمجھ کر گرفتار کر لیا، اور جب وہ تنگ و تاریک کوٹھری میں بند ہوئیں تو ہر عورت کے لبوں سے ایک کہانی پھوٹی، ایک دکھ، ایک سبق، ایک پچھتاوا۔ یہ کہانی ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کبھی نیت خراب نہیں کی مگر عقل کا دامن چھوڑ دیا، جنہیں دنیا بے وقوف کہتی رہی، لیکن شاید وہ بے وقوف نہیں تھیں، بس بے حد خالص تھیں۔ چاندنی رات نیلے آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ 7 عورتیں جن کے چہرے سفید چادروں میں لپٹے ہوئے تھے دبے قدموں گاؤں سے نکل رہی تھیں۔ ان کے سروں پر کپڑوں کی بھاری گٹھڑیاں تھیں اور دلوں میں دبی ہوئی دعائیں۔ وہ بول نہیں رہی تھیں مگر ان کے قدموں کی چاپ میں بے چینی صاف سنائی دیتی تھی۔ جیسے ہی شہر کے گیٹ پر پہنچے ایک سناٹا ان کے گرد لپٹ گیا۔ اچانک کہیں سے آواز آئی، کون جا رہا ہے؟ عورتوں کے قدم رک گئے۔ سامنے گشتی سپاہی مشل کی روشنی میں انہیں گھور رہا تھا۔ ہر عورت کا چہرہ پسینے سے بھیگا، پر لب خاموش۔ سپاہی غصے میں قریب آیا، بولتی کیوں نہیں؟ یہ گٹھڑیاں کیا ہیں؟ چوری کا سامان؟ ایک عورت نے کانپتی آواز میں کہا، بھائی، یہ سوٹ ہیں، شہر میں بیچنے جا رہے ہیں۔ سپاہی ہنسا، رات کے 12 بجے، بازار بند ہے، تم سب چور لگتی ہو۔ سپاہیوں نے عورتوں کو پکڑا اور تھانے کی طرف چل پڑے۔ راستے بھر عورتیں نظر جھکائے، گٹھڑیاں اٹھائے، خاموشی سے قدم اٹھاتی رہیں۔ وہ جانتی تھیں کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تھانے پہنچ کر سپاہی نے دروگا جی کو جگایا، جو نیند سے بیزار ہو کر بولا، ہاں ہاں، بند کر دو سب کو، صبح دیکھی جائے گی۔ عورتوں کو ایک تنگ سی کوٹھری میں ڈال دیا گیا، جہاں صرف ایک چھوٹی کھڑکی تھی۔ کوٹھری کے اندر ہر عورت چپ تھی، کسی کا سر گھٹنوں میں چھپا تھا، کوئی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، کسی کو اپنی عزت کا دکھ تھا، کسی کو شوہر کا خوف۔ سب کا دل بھرا ہوا تھا، لیکن زبانیں بند۔ آخر ایک عورت نے چپ توڑی، ایسی رات کب کٹے گی؟ کوئی بات سناؤ، دل بہلے گا۔ دوسری نے سر اٹھایا، تمہیں اپنی سناؤں؟ پھر مت کہنا ہم ہی بیوقوف تھیں۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کہانی شروع ہونے والی تھی۔ وہ ایک چپڑاسی کی بیوی تھی، نہ ساس نہ نند، شوہر کے ساتھ سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ مخلص، خاموش اور سادہ عورت تھی۔ شوہر کی محبت اس کے دل کی روشنی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ شوہر دفتر سے واپس نہ آیا۔ بھوک ستا رہی تھی، مگر اس نے عادت کے مطابق پہلے شوہر کے کھانے کا انتظار کیا۔ دل بے چین ہونے لگا۔ اس نے شہر سے ایک چھوٹی سی بکری لی تھی جس کا نام رکھا تھا بدو۔ وہ بدو سے دل کی باتیں کرتی، اس سے ہنستی، اسے بچوں کی طرح پالتی۔ اسی دن جب شوہر نہ آیا تو اس نے بدو کو غور سے دیکھا اور پوچھا، بدو، کیا تم کھانا لے جاؤ گی اپنے شہر کو؟ بدو نے گردن ہلائی جیسے سمجھ رہی ہو۔ اس عورت نے بدو کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، بالوں میں چمبیلی کا تیل لگایا، کانوں میں اپنی بالیاں ڈالی اور اپنی شادی کا دوپٹہ اس پر اڑھایا۔ پھر ایک صاف ستھرا دسترخوان لپیٹا، کھانا باندھا اور بدو کی گردن میں لٹکا دیا۔ بدو اب اس کے خیال میں شوہر کی عزت بن چکی تھی۔ اس نے بڑے فخر سے بدو کو دروازے سے باہر نکالا، جیسے کوئی شہزادی روانہ کی جا رہی ہو۔ دل میں دعائیں تھیں، آنکھوں میں خوشی اور لبوں پر پیار بھرا تبسم۔ جیسے ہی بکری گلی سے نکلی، وہ پلنگ پر بیٹھ کر سیکھ کا سانس لینے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد شوہر پسینے میں بھیگا،
गुस्से में घर में दाखिल हुआ। खाना दो, उसने कहा। औरत हंसी। क्या मजाक कर रहे हैं? आपको तो बुद्धू ने खाना दे दिया होगा। शौहर की आंखों में हैरत थी। कौन बुद्धू? औरत बोली, हमारी बकरी। और ये सुनते ही शौहर का खून खोल उठा। शौहर दीवानावार बाहर निकला। गली में हर एक से पूछने लगा, क्या किसी ने बुद्धू को देखा? मगर जो भी सुनता हंसी से लौट-पोट हो जाता। बकरी खाना दे गई, तुम्हें हो क्या गया है? वो बाजार, गली, यहां तक के दफ्तर तक गया, मगर बुद्धू कहीं ना मिली। जब शाम को लौटा तो उसके चेहरे पर मायूसी, गुस्सा और औरत की शादी को बमुश्किल 1 महीना ही हुआ था जब शौहर तिजारत के सिलसिले में 6 महीने के लिए परदेस रवाना हो गया। उसके जाने के बाद दिल पर तन्हाई का पहाड़ टूटा। मां ने दिलजोई के लिए उसे बुलाया, मगर शौहर ने अपनी मां को ही घर भिजवा दिया कि वो बेटी का ख्याल रखेगी। शौहर ने जाते जाते सारा साल का सौदा सल्फ रखवा दिया। गंदुम, दालें, कपड़े और खास दिनों के लिए अलग अलग रकूम, ईद, मुहर्रम, शरबत, सदका, हर चीज के पैसे अलग अलग दिए। बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत और एतमाद की कद्र बढ़ गई। एक दिन उसने मां से कहा, अम्मा, शौहर ने जितने लोगों के पैसे रखवाए हैं क्यों न आज ही उनको दे दिए जाएं। मां ने कहा, क्यों नहीं बेटा, नेकी का काम है। वो गली में खड़ी हो गई और जो भी आया उससे पूछती, क्या तुम शरबती हो, क्या तुम ईदी हो? वो हर एक को रकम देती गई। मोहल्ले की औरतें आने लगें, कोई चावल लेती, कोई आटा, कोई उसके जेवर तक ले गईं। बाद में वापस कर दूंगी बहन। इस सादा दिल बीवी ने सब दे दिया। दिल खुश था कि उसने शौहर की दी हुई अमानत लोगों में बांट दी। 6 महीने के खत्म होते ही शौहर अचानक वापस आ गया। घर के कमरे सुने, अलमारियां खाली, जेवर गायब। उसने हैरत से पूछा, ये सब कहाँ गया? औरत ने मुस्कुराकर कहा, सब बांट दिया, जिसके नाम था उन्हें दे दिया। मैंने कर्ज के पैसे हमसाई को दे दिए और मोहल्ले वालों को जरूरत का सामान, क्योंकि सबको जरूरत थी। वो फख्र से बोली। शौहर का चेहरा सुन हो गया। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उसने कोई बहस ना की, सिर्फ खामोशी से उसका सामान बांधा और दरवाजा खोलकर कहा, नेकी अच्छी चीज है पर समझदारी के साथ। ऐसी औरत जो अपना घर लुटा दे, वो किसी का नहीं बसा सकती। वो कुछ ना बोली, सिर्फ आसमान की तरफ देखती रही। औरत के शौहर को हलवा बहुत पसंद था, खासकर हरीरा। जब भी वो खाती, शौहर कहता, तुम मेहनत करती हो मगर इतना थोड़ा बनाती हो कि मेरा दिल नहीं भरता। ये बात बार बार सुनकर औरत का दिल दिखने लगा। उसने दिल में तहिया किया कि अब के बार ऐसा हलवा बनाऊंगी कि शौहर सारी जिंदगी याद रखे। अगली सुबह औरत ने अपनी हमसाई से कहा, आज कुएं में हरीरा बनाऊंगी। हमसाई हैरत ज़दा हुई। कुएं में? औरत बोली, हाँ। शौहर को ऐसा हलवा चाहिए जो कभी खत्म न हो। उसने बाजार से सूजी, चीनी, घी मंगवाया और कुएं में डालने की तैयारी शुरू कर दी। औरत ने चीनी, घी, सूजी सब कुएं में डाल दिया। फिर एक लंबा बांस लिया और उसे जोर जोर से हिलाने लगी, जैसे दीग हिला रही हो। अब जो हरीरा बनेगा वो शौहर की मोहब्बत जीत लेगा। कुआं उबलता नहीं था, मगर वो पर उम्मीद थी। जब मवाद कम पड़ गया तो उसने अपने हाथों की चूड़ियां उतारीं, हमसाई को दिया और कहा, जाओ और घी और सूजी ले आओ। शौहर के लिए हरीरा मुकम्मल होना चाहिए। फिर बाकी बचा जेवर भी दे दिया, यहां तक कि इसके पास कुछ न बचा।
मोहब्बत का जुनून अकल से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। शाम को शौहर आया, थका हारा। खाने को कुछ है? औरत मुस्कुराकर बोली, आज इतना हरीरा बनाया है, उम्र भर काफी होगा। शौहर हैरान हुआ, कहाँ है? औरत ने कुएं की तरफ इशारा किया। डोल डालो, खुद निकालो। शौहर ने डोल डाला, बाहर निकाला तो कीचड़ से भरा था। औरत ने जबरदस्ती चम्मच से थोड़ा मुंह में डाला। शौहर ने फौरन थूका, ये क्या कीचड़ खिला रही हो? औरत गुस्से से बोली, ये वो हरीरा है जिसके लिए मैंने सब कुर्बान कर दिया। शौहर का चेहरा लाल हो गया। तुमने मेरा मजाक बनाया है, अपने घर का सत्यानाश कर दिया। औरत चीखी, मैंने सिर्फ तुम्हें खुश करने की कोशिश की। शौहर ने दरवाजा खोला और कहा, ऐसी औरत को मेरे घर में जगह नहीं। और वो बाहर धकेल दी गई, हलवे की चाहत में सब कुछ खो। औरत अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो जाती, मगर कहने से कासिर थी। उस दिन उसने तहिया किया, अब शौहर को दिखाऊंगी कि सफाई क्या होती है। शौहर सफर पर गया तो औरत ने पहली बार दिल से कुछ करने का इरादा किया। उसने कहा, मैं पूरा घर ऐसे चमका दूंगी कि शौहर की आंखें खुल जाएं। उसने गोदाम खोला, चूने की बोरियां निकलवाईं और पानी में घोलना शुरू कर दिया। लौंडियां मना करती रहीं, बीबी ये सारा सामान खराब हो जाएगा, मगर वो ना मानी। हर दीवार पर चूना मारा, फर्श पर, छत पर, यहां तक कि खिड़कियों तक। शौहर की जबान बंद करनी है, कुछ भी हो। काम खत्म हुआ तो वो नहा धोकर तैयार हुई। सुर्ख दुपट्टा, भारी झमके, हाथों में चूड़ियां। आज जब वो घर में दाखिल होगा, सफाई, खुशबू और बीवी सब एक जैसा नजर आएंगे। उसने अतर लगाकर बैठक में खुशबू भी भर दी। शाम को शौहर वापस आया, दरवाजे से अंदर आते ही रुक गया। ये खुशबू? कोई इत्र की बोतल टूट गई क्या? उसने बीवी को देखा, मुस्कुराया, फिर तेजी से कहा, गोदाम की चाबी दो, बाहर गाहक खड़े हैं। औरत बोली, गोदाम में क्या रखा है? मैं तो सब इस्तेमाल कर चुकी। शौहर ने दीवारों को देखा, फर्श पर सफेद दाग, बर्तनों पर चूना। ये क्या क्या है? औरत फख्र से बोली, गोदाम के सारे चूने से घर चमका दिया। तुम ही तो कहते थे साफ नहीं रहती। शौहर ने सर पीट लिया, तुमने पूरा कारोबार मिट्टी में मिला दिया। खामोशी छा गई। शौहर ने सिर्फ दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोला, तुम सफाई पसंद हो पर समझ से खाली हो। ऐसी बीवी मेरा घर नहीं संवार सकती। वो दरवाजे की चौखट पर खड़ी रही, आंखें पुरनम, जैसे उसने एक जंग जीत कर सब कुछ हार दिया हो। शादी को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि शौहर ने तिजारत के लिए दूर दराज मुल्क जाने का ऐलान किया। औरत का दिल टूट गया, आंखें बरसने लगीं। इतनी जल्दी? शौहर ने तसल्ली दी, जल्दी लौट आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। मगर दिल मानने को तैयार न था। रात आंखों में कटी, सुबह न रोकी गई। मुझे शौहर के पास जाना है। खादमा ने हैरत से पूछा, कैसे जाओगी बीबी? बीच में दरिया आता है, कश्ती चाहिए। औरत ने सर उठाया, तो फिर? दरिया हम खुद बना लेंगे। उसने मजदूर बुलाए, खिड़कियां रोशनदान बंद कराए, फिर जेवर बीच कर पानी खरीदने का बंदोबस्त किया। एक शख्स ने वादा किया, बीबी पूरा आंगन पानी से भर दूंगा। वो खुश हो गई। जब दिल में दरिया हो तो घर भी दरिया बन सकता है। खादमा ने 2 घड़े अलहदा रखे, हम उन पर बैठकर तैरेंगे। औरत ने सफेद दुपट्टा ओढ़ा, खुद को मुसाफिर समझा। चलो शौहर के साहिल की तरफ। और फिर दोनों घर के अंदर दरिया में उतर गईं। घड़े लड़खड़ाते, पानी छुपा के देता, मगर औरत का दिल मस्त था। कभी आगे निकलती, कभी खादमा पीछे रहती। हम पहुंचने वाले हैं। मगर जब शाम ढली तो औरत ने सवाल किया, रात कहां गुजारेंगे? खादमा ने कहा,
घर की छत पर। औरत चौंकी। ये दरिया है, घर कहां से आ गया? इसी लम्हे सामने कमरे की खिड़की खुली। शौहर जो कोई कागज भूल कर आया था नजर आया। अरे, तुम यहां क्या कर रही हो? औरत ने चीख कर कहा, आप चले गए तो हम खुद आ गए। ये देखिए, दरिया पार कर लिया। शौहर हका बुका रह गया। शौहर ने आगे बढ़कर खादमा को मारा और औरत से कहा, तुमने घर को तमाशा बना दिया। ये इश्क है या जुनून? फिर खामोशी से दरवाजा खोला। निकल जाओ, इस मोहब्बत का खमियाजा अब तुम खुद भुगतो। औरत पानी से निकलकर चुपचाप बाहर चली गई। वो 3 भाइयों की सबसे बड़ी बहन थी। जवानी की दहलीज पार कर चुकी थी, मगर कोई रिश्ता ना आया। छोटी बहनों की शादियां हो गईं, मगर वो मां के साथ बैठी रहती, खामोश, गुमसम। मां के दिल में दर्द, बेटी के लिए दुख और अधूरा ख्वाब रह गए थे। एक दिन एक कम तनख्वाह वाले मुलाजिम का रिश्ता आया। मां ने कहा, उम्र गुजर रही है बेटी, कम तनख्वाह है तो क्या, दिल साफ है। औरत ने मां के ख्वाबों की खातिर हामी भर ली। बस तुम खुश रहना अम्मा। यही उसकी रजा थी, यही उसकी खामोशी का सिल्ला। शादी के बाद जल्द ही गुर्बत ने दरवाजा खटखटाया। शौहर ने 50 रुपए दिए और कहा, यही है खर्च, बाकी तुम खुद संभालो। औरत ने हमसाई को राजदार बनाया, जेवर बेचा, घर चलाया, मगर अंदर ही अंदर खाली होती गई। एक दिन मां की तबीयत खराब हुई। औरत शौहर को साथ लेकर मां के घर पहुंची। दवाएं, देखभाल, सब कुछ किया, मगर मां न बच सकी। आखिरी सांसों में मां ने हाथ थाम कर कहा, मेरी रसूमात मुकम्मल करना जैसे मैं करती थी। शौहर ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं, अगर कुछ उठा सकती हो तो खुद उठाओ। औरत ने कहा, ठीक है, मैं खुद उठाऊंगी, मां का कर्ज है। उस रात जब सब सो गए, वो मां के कमरे में गई और वो पत्थर उठा लाई जिस पर मां नमाज पढ़ा करती। औरत ने शौहर को जगाया, देखो, मैंने वो चीज उठा ली है जिसका वादा किया था। शौहर ने हैरत से पूछा, क्या इसके नीचे खजाना है? औरत बोली, नहीं, ये वो पत्थर है जिस पर अम्मा नमाज पढ़ती थीं। उनके लिए सबसे भारी चीज यही थी। शौहर का चेहरा सुन पड़ गया। तुमने मेरी बात का मतलब ही नहीं समझा। तुम वाकई दुनिया की सबसे नासमझ औरत हो। फिर वो उसे जंगल में छोड़ आया। जाओ, ऐसी औरत अपनी अकल खुद ढूंढ ले। औरत दरख्तों के साए में बैठ गई, चुप, खामोश। हाथ में नमाज वाला पत्थर था, दिल में सिर्फ अम्मा।